Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing good. Here I am your English teacher. Today we are going to start lesson number 4, Grandma's Surprise, which is at the page number 33 on your semester 2nd book. Firstly, students, we will check out the learning objectives of this chapter. The main learning objectives of this chapter are: we have to do the comprehensive reading of the lesson. We have to learn about hard words. We have to learn about apostrophe. We have to learn about similes, and also we have to learn about punctuation. Okay, students, now let's start the chapter. Firstly, before that, I want to tell you what does this grammar surprise means. Here we have apostrophe followed by s. That means this surprise belongs to grandma, or we can say surprise of ग्रैंड सो इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ग्रैंड माँ जो है उसने सरप्राइज क्या लाया हुआ है या सरप्राइज क्या दिया है. Okay, before starting the comprehensive reading, let's check the warm up. In warm up, we have what are the fun things that to do with your grandparents. आप आपको कौन सी वो फन थिंग्स मज़े की चीज़ें लगती है जो आप किन के साथ करते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कोई ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनता है, कोई वॉक पे जाता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कोई ये टीवी देखता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. दैट मीन्स बहुत सारी फ़न की चीज़ें होती है जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करते हैं या कर सकते हैं. होप आप भी ये चीज़ें करते होंगे. Okay, now let's do the comprehensive reading, and side by side I will explain the lesson. Okay. Sean got down from his school bus and started walking towards his house. It was Saturday, a half day at school. He was not looking forward to returning home as both his parents would be at work. Okay, in this first paragraph, let's check the. Let me tell you the meaning, or let me explain this paragraph. Sean got down from his school bus. Sean जो है ये इसमें एक छोटा बच्चा होता है, वो कहाँ से उतरता है? Got down from his school bus, वो अपनी स्कूल बस से उतरता है. And started walking towards his house, और कहाँ की तरफ बढ़ रहा है? अपने घर की तरफ. यहाँ towards जो है ये preposition of direction है, जो हमने previous lecture में पढ़ा हुआ है. preposition of direction. यहाँ पे towards जो है preposition of direction है. वो कहाँ की तरफ बढ़ रहा है? अपने घर की तरफ बढ़ रहा है. It was Saturday. ये क्या था? ये सैटरडे था. ए हाफ डे एट स्कूल. इस दिन स्कूल में क्या होता था? हाफ डे. किन के स्कूल में? शान के स्कूल में. और हमारे स्कूल में कब होता है? फ्राइडे के दिन हाफ डे होता है. He was not looking forward to returning home. वो खुश नहीं दिख रहा था या उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी या वो खुश नहीं था घर आने को. क्यों? As both of his parents would be at work. क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स जो है, both of his parents यानी उसके मदर और फादर दोनों जो है कहाँ पे होंगे? At work, काम पे होंगे. Things had been gone badly for him ever since his grandmother had come to stay with them 2 months ago. No birthday party because grandma fell ill, no pets allowed because grandma was allergic to fur, no music and lights after 9:30 because grandma needed rest. अब ये खुश क्यों नहीं दिख रहा था घर आने को? क्योंकि things had been going badly for him since his grandma had come to stay with them 2 months ago. चीज़ें उसके साथ ठीक नहीं जा रही थी, यानी उसके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही थी, क्योंकि जब से उसकी ग्रैंड माँ उनके साथ रहने आई थी 2 मंथ्स यानी 2 मंथ्स पहले से उसके साथ चीज़ें ठीक से नहीं हो रही थी. 2 मंथ से उनके साथ कौन रह रही थी? उनकी ग्रैंड माँ रह रही थी. ग्रैंड माँ मीन्स ग्रैंड मदर रह रही थी. नो बर्थडे पार्टीज. घर में कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनाई जा रही थी बिकॉज ग्रैंड माँ फैल इल. ग्रैंड माँ क्या थी? बीमार थी. नो पेट्स अलाउड. कोई पेट अलाउड नहीं था. कोई ये जो उनके पेट्स घर में होते थे, कोई पेट अलाउड नहीं था क्योंकि ग्रैंड माँ को क्या था? ग्रैंड माँ वॉज एलर्जिक टू फर. पेट्स के फर से ग्रैंड माँ को एलर्जी थी.
नो म्यूज़िक एंड लाइट्स आफ्टर 9:30। 9:30 के बाद, शाम के 9:30 के बाद क्या होता था, कोई म्यूज़िक कोई लाइट्स नहीं होती थी, क्योंकि ग्रैंड माँ को क्या चाहिए होता था, बिकॉज ग्रैंड माँ नीडेड रेस्ट। तो जो चीज़ें शान को मज़ा दे रही थी वो चीज़ें नहीं हो रही थी घर में, क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ उनके साथ रहने आई थी, इसलिए शान जो था वो क्या था, वो था अपसेट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। His mother had even stopped preparing his favorite dishes. She cooked only what his grandmother likes to eat. How unfair! Sean hardly spoke to his grandmother. Even his cousins had told him she was a grouchy woman. दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि इवन हिज मदर हैड स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग हिज फेवरेट डिशेज। किसकी मदर? हिज मदर। यहाँ पे हिज किसको रेफर करा है? शान को। शान की मदर जो है उसने क्या ये किया था, उसने अब रोका था। शान की पसंद की चीज़ें वो अब नहीं बनाती थी, शान की पसंद के खाने वो अब नहीं बना रही थी। शी कुक्ड only what his grandmother liked to eat. हाउ अनफेयर! कितना ये हो रहा था, इसके शान के साथ कितना गलत हो रहा था। शान हार्डली स्पोक टू हिज ग्रैंड मदर। हार्डली क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉट। वो बहुत कम बात करता था, मुश्किल से बात करता था। किससे? अपनी ग्रैंड मदर से, क्योंकि ग्रैंड मदर की वजह से उसको क्या हो रहा था, वो उसके हिसाब से उसकी चीज़ें नहीं हो रही थी। इवन हिज कजन्स हैड टोल्ड हिम, उसके कजन्स ने भी उसको बोला था, शी वॉज ए ग्राउची वुमन। हु वॉज ए ग्राउची वुमन? ग्रैंड माँ वॉज ए ग्राउची वुमन। ग्राउची क्या होता है? इल टेम्पर्ड, यानी ग्रैंड माँ आपकी है वो अच्छी औरत नहीं है, वो सिर्फ उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। यानी ये शान के कजन्स ने शान को बोला था, और शान जो है उसने एक गलत इमेज बनाई थी ग्रैंड माँ की अपने दिमाग में। शान रैंग द डोरबेल। अब जब वो स्कूल से घर आ रहा है तो घर के दरवाजे पे पहुंचा। शान रैंग द डोरबेल, उसने डोरबेल दबाई। ही हर्ड हिज ग्रैंड मदर्स फुटस्टेप्स एज शी वॉक्ड डाउन द पैसेज टुवर्ड्स द डोर। उसने सुना, ही हर्ड, उसने सुना था, हिज ग्रैंड मदर्स फुटस्टेप्स, उसने सुना कि ग्रैंड माँ जो है वो आ रही है दरवाज़ा खोलने के लिए। शी वॉक्ड डाउन द पैसेज टुवर्ड्स द डोर। वो कहाँ से? वो नीचे से वो ऊपर से आ रही थी नीचे, जैसे कॉरिडोर में से, और दरवाज़ा खोलने के लिए। द मोमेंट शी ओपनड द डोर, और वो पल जब उसने क्या खोला, जब उसने दरवाज़ा खोला, rushed into his home and flung himself and his school bag on the bed. The bed burst up, the bag burst open, and a few books fell out of the bag onto the floor. तो क्या हुआ, जैसे ही ग्रैंड मदर ने दरवाज़ा खोला तो शान ने क्या किया, उसने वो रश वहाँ से, कहाँ से रश होके कहाँ से गया, वो वहाँ से डायरेक्ट अपने रूम में गया, एंड फ्लग हिमसेल्फ एंड हिज स्कूल बैग इनटू द बेड। और उसने क्या किया, अपने आप को और स्कूल बैग को दोनों को किस पे, ये ज़ोर से मारा, बेड पे। द बैग ब्रस्ट ओपन, और बैग जैसे उसने बेड पे मारा तो बैग खुल गया। एंड फ्यू ऑफ हिज बुक्स फेल आउट ऑफ द बैग, और कुछ बुक्स उसकी जो है वो बैग से बाहर आ गई। ऑन टू द फ्लोर, ऑन टू यहाँ से फिर से क्या है, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ऑन टू द फ्लोर। तो क्या हो गया यहाँ पे, उसकी जो बुक्स है वो कहाँ बिखर गई, फ्लोर पे, फर्श पे वो बिखर गई। A little while later, Grandma entered the room. She picked up the books and put them back into the bag. Sean pretended to be asleep. As soon as she left the room, he sat up in bed. Then he lay down again.
A little while, जैसे ही शॉन अपने कमरे में आया, अपने बैग को और खुद को कहाँ पे मारा, बेड पे मारा, तो थोड़ी देर में, a little while later, थोड़ी देर में grandma entered the room, grandma इसी के कमरे में आ गई. She picked up the books, उसने जो किताबें अपनी बिखेरी थी, जो फर्श पे बिखर गई थी, उसने उनको समेटा, उनको उठाया and put them back into the bag, और कहाँ पे रखा, वापस किस में रखा, बैग में. Sean pretended to be asleep. शॉन ने क्या किया, उसने प्रिटेंड करना क्या होता है, दिखावा करना. उसने ये सोने का नाटक किया या दिखावा किया जैसे वो उसको नींद पड़ गई है. एज सोन एज शी लेफ्ट द रूम, शी किसको प्रिटेंड कर रहा है यहाँ, शी किसको प्रेफर कर रहा है, ग्रैंड माँ को. एज सोन एज शी लेफ्ट द रूम, जैसे उसने क्या किया, उसने कमरे से बाहर गई. ही सेट अप इन बेड, वो वापस उठ गया. सेट अप इन बेड, सिट की पास्ट फॉर्म है सैट, वो फिर से उठ गया बेड पे. देन ही ले डाउन अगेन, फिर जैसे उठा, देखा ग्रैंड माँ यहाँ से गई और फिर से कहाँ पे गया, वापस लेटा बेड पे, फिर से लेटा. ओके. 15 minutes later, a delicious aroma spread through the house. Sean's stomach growled. 15 मिनट के बाद क्या हुआ, जैसे ग्रैंड माँ ने इसके कमरे से बाहर गई, तो 15 मिनट्स बाद क्या हुआ, ए डिलीशियस, एक बहुत अच्छे मज़ेदार और क्या होती है, नाइस स्मेल, एक अच्छी सी स्मेल क्या होगी, पूरे घर में फैल गई. स्प्रेड थ्रू द हाउस, पूरे घर में फैल गई. शान स्टमक ग्राउलड, यानी वो तो भूखा था, स्कूल से आया था, भूख तो लगी होगी, उसके स्टमक में क्या होने लगा, वो आवाज़ें, खाली पेट जो आवाज़ें होती हैं उसको ग्राउल कहते हैं, यानी उसको उसका स्टमक क्या करने लगा, ग्राउल करने लगा. बट ही डिडंट लीव द रूम, लेकिन वो उसने कमरे को नहीं छोड़ा, वो किचन में या डाइनिंग रूम में नहीं गया. ही जस्ट ले इन बेड, उसने क्या किया, वो सिर्फ अपने बेड पे लेटा रहा. विद हिज आइज क्लोज्ड, और अपनी आंखें बंद की और कहाँ पे लेटा रहा, बेड पे लेटा रहा. सडनली ही हर्ड हिज ग्रैंड मदर एंटर इन द रूम, तो अचानक से उसने फिर से क्या सुना कि उसकी ग्रैंड माँ क्या आ रही है, उसके कमरे में आ रही है. यू मस्ट बी हंग्री, यू मस्ट बी हंग्री, लेट्स ईट. तो वो क्या कह रही है, आपको ज़रूर भूख लगी होगी, यू मस्ट बी हंग्री, हंग्री, लेट्स ईट. तो क्या करते हैं, चलो कुछ खाते. शी सैड, हु सैड, ग्रैंड मदर सैड. होल्डिंग हिज हैंड, उसका हाथ थामा, उसको हाथ से पकड़ा और क्या किया, शी ड्रैग्ड हिम टू द डाइनिंग रूम, और उसको वहाँ अपने साथ ले गई. कहाँ पे ले गई, डाइनिंग रूम में ले गई. Okay, students, tomorrow we will check the rest comprehensive reading. Okay, firstly, let me tell you, we have two hard words here, grouchy and orma. Grouchy means ill-tempered, orma means nice smell. Okay, and students, we have we have uh, we have the we have to learn about apostrophe here. Okay, here एप्स्ट्रॉपी क्या होता है, ये जो इसके यहाँ पे है शांस रोम, ये जो बीच में यहाँ पे एस से पहले जो ये, इसको हम एप्स्ट्रॉपी कहते हैं. और एप्स्ट्रॉपी का क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है शांस रोम ग्रैंड माज रेसिपी. तो इसका क्या मतलब होता है, द हाईलाइटेड वर्ड्स कंटेन एन एप्स्ट्रॉपी. ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनमें क्या है, इनमें एक एप्स्ट्रॉपी है, फॉलोवर्ड बाय एस. और एप्स्ट्रॉपी के बाद क्या है, एस है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एस है. एन एप्स्ट्रॉपी इज़ अ पंक्चुएशन मार्क. एप्स्ट्रॉपी क्या होती है, ये एक पंक्चुएशन मार्क होती है, यानी जैसे हम पंक्चुएशन मार्क और किसको कहते हैं, फुल स्टॉप को कहते हैं, कॉमा को कहते हैं, और ऐसी इसको एप्स्ट्रॉपी को भी हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, यानी यहाँ पे ये किस लिए यूज़ होता है, जो यहाँ पे ये रूम है, ये किस से बिलोंग करता है, शान से. दैट मीन्स दिस रूम बिलोंग्स टू शान. अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम एप्स्ट्रॉपी का इस्तेमाल करते हैं और एप्स्ट्रॉपी के बाद एस लगाते हैं, तो हमें ये पता चलता है सामने वाली जो चीज़ है वो इससे बिलोंग करती है. यानी शान्स रूम का क्या मतलब है, दिस रूम बिलोंग्स टू शान, और वी कैन से रूम ऑफ शान. ओके, so Shan's room means that the room belonging to Shan, and the grandma's recipe means recipe belongs to
ग्रैंडमा। सो एप्स्ट्रॉपी का क्या यूज़ होता है? एप्स्ट्रॉपी कहाँ पे, ये एक पंक्चुएशन मार्क होती है, और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, वो दिखाते वो किसका है। ये शॉर्ट में हम फिर किसका इस्तेमाल करते हैं? एप्स्ट्रॉपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और जितना हमने आज पढ़ा आज के लेक्चर में, उसमें हमें एक क्वेश्चन आया है। आंसर दिस क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन उसमें से आया है, तो हम इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। वाई हैड शान बीन अनहैप्पी एट होम फॉर 2 months? शान अपने घर पे 2 months से नाखुश क्यों था? शान हैड बीन अनहैप्पी एट होम फॉर द पास्ट 2 months बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैड कम टू स्टे विद दैम। वो इसलिए 2 months से क्या था, ना खुश था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ उनके साथ रहने आई थी। ही कुड नॉट हैव बर्थडे पार्टी। उसके घर पे कोई बर्थडे पार्टी नहीं हो रही थी, बिकॉज ग्रैंड माँ जो है, ग्रैंड माँ हैड फॉलन इल। देयर वेयर नो पेट्स अलाउड। कोई पेट अलाउड नहीं था, बिकॉज ग्रैंड माँ वॉज एलर्जिक टू फर। क्योंकि ग्रैंड माँ को क्या था, उसको फर से एलर्जी थी। एंड देयर कुड बी नो म्यूज़िक एंड लाइट्स आफ्टर 9:30 PM। 9:30 पे कोई 9:30 के बाद कोई म्यूज़िक कोई लाइट्स नहीं होती थी, क्योंकि ग्रैंड मा नीडेड रेस्ट। ओके। इवन हिज मदर हैड स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग हिज फेवरेट डिशेज। और उसकी मदर ने बंद किया था क्या बनाना, शान के फेवरेट डिशेज वो वही बनाती थी, बिकॉज शी कुकड ओनली व्हाट हिज ग्रैंड मदर लाइक टू ईट। वो वही बनाती थी जो ग्रैंड माँ को पसंद था खाना। तो इसीलिए शान लास्ट के 2 months से क्या था, वो अनहैप्पी था। ओके स्टूडेंट्स, this was the first lecture of this lesson number 4, and tomorrow I will send you the second lecture of this lesson number 4. Okay, stay then, stay blessed.